Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 15, study note number 1, that is cost management illustrations. So in this video we will solve illustration number 2. A to Z PLC supports the concept of Tarot technology or the life cycle costing for a new investment decisions, covering its engineering activities. The financial side of a philosophy is now well established and its principles extended to all the other areas of decision making. The company is to replace the number of machines and the production manager is to turn between the EXE machine, a more expensive machine. Okay, so EXE machine is there, which is more expensive machine with a life of 12 years. So life is 12 years. And WYE machine with an estimated life of 6 years. So life is of 6 years. Okay, so see, all these 2-3 lines are irrelevant for us. Just we have to consider the two machine, that is EXE machine, which is more expensive and life is 12 years. Here see, this is the expected life. After that, WYE machine, which expected life is 6 years. Okay, so simply we have to take a decision that which machinery we have to buy. Okay, so investment decision will take, see, new investment decision na, so we have to take the decision that which machinery we have to purchase. Okay, if the YWE machine is chosen, it is likely that it would be replaced at the end of 6th year by another YWE machine. Okay, here EXE machine will retain for 12 years. Okay, so EXE machine का जो भी लाइफ है वो 12 years है, तो जो भी उसका रिप्लेसमेंट वो सब रहेगा वो 12 years के बाद रहेगा. लेकिन अगर हम लोग ने YWE मशीन चूज़ किया तो उसका तो ईयर 6 years है ना, तो 6 year के बाद हम लोग को रिप्लेस करके नया मशीनरी, that is YWE machinery लाना पड़ेगा. Okay, the pattern of maintenance and running cost differs between two types of machine and relevant data are shown below. Okay, so simply जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, वो सब हम लोग को दिया है. बेसिकली ये जो टाइप के क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को क्या करना है, पीवी फैक्टर कंसिडर करके हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सी मशीनरी ज़्यादा बेटर रहेगी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ओके, so this was the data. From this data, the relevant things are name of the machine and life of the machine. After that, the important data is given here, that is purchase price of both the machines. Then see, trade in value, breakup or scrap. So this is the scrap value. After that, annual repair cost, overhaul cost, then estimated financing cost, average over the machine life, that is 10% and 10%. Okay, so after that you are required to recommend with the supporting figures which machine to purchase, stating any assumptions made. Okay, so here जो PV factor है वो हम लोग को दिया है. See, average over the machine life ना, then this is the PV factor, that is 10% and 10%. We have to consider this PV factor and from that we have to tell the company that which machinery is better to purchase. Okay, so let's start. See, this will prepare a format like this to give the answer. See, here we'll do all the calculations and here final figure will record. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल कॉस्ट मतलब क्या कि जो परचेज प्राइस रहेगा वो हम लोग का इनिशियल कॉस्ट रहेगा, तो उसका तो जो वैल्यू रहेगा वही रहेगा ना, उसका पीवी फैक्टर वो सब करने की ज़रूरत नहीं है. जो प्रॉपर परचेज प्राइस है वही रिकॉर्ड करना है एज अ इनिशियल कॉस्ट, दैट इज 19,000 फॉर EXE एंड 13,000 फॉर YWE. सो 19,000 and 13,000. Okay, no calculation will be there for this. Okay, after that next we'll record, that is scrap. See, all these things means what, it is a scrap. So scrap हम लोग को दिया है 3,000 and 3,000. Okay, अभी स्क्रैप जो होता है वो कब होता है, जब मशीनरी का जो लाइफ है वो एंड होता है, तभी स्क्रैप वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है.
अभी क्या है ना, हर एक मशीनरी, ये दोनों मशीनरी का ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्योंकि उन लोग का ईयर्स अलग है. Okay, so first of all we'll complete for EXE because number of years are different. So we'll think about the scrap of EXE. See, the life of EXE is 12 years. Okay, हम लोग ने क्वेश्चन का जो फर्स्ट पैरा है उसमें रीड किया कि लाइफ ऑफ EXE is 12 years and YW is 6 years. So 12 years कंप्लीट होने के बाद उसका स्क्रैप किया जाता है ना. So EXE will go to the scrap after completing 12 years. So we have to find out the scrap value using PV factor. Okay, at the end of year 12. Okay, for that we'll prepare one working note. See, amount is 3000. Okay, scrap amount is 3000 but we have to use the PV factor. Okay, PV factor हम लोग को क्या बोला है, that is 10% बोला है. मतलब ये जो 3000 है वो आज के डेट पे उसका वैल्यू 3000 है, बट आफ्टर 12 years व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस 3000 बिकॉज इन्फ्लेशन वो सब जो भी फैक्टर्स है वो कंसिडर करके हम लोग को परसेंटेज पता चलता है ना पीवी का, तो उन लोग ने दिया है 10%. ओके, तो कैसे फाइंड आउट करना है वो लॉजिकली आप लोग ध्यान में रखो. मतलब EXE का करेंगे तो WYE का आप लोग को ईजिली आ जाएगा. ओके, सो हियर विल प्रिपेयर अ वर्किंग नोट. ओके, वर्किंग नोट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ स्क्रैप. ओके, स्क्रैप के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को क्या है ना, पीवी फैक्टर कितना दिया है, पीवी फैक्टर इज 10%. ओके, पीवी फैक्टर इज 10%. वी आर डूइंग फॉर EXE. ओके, EXE 10% का पीवी फैक्टर दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मल्टीप्लाइड बाय 10%. ओके, सी कैलसी पे हम लोग कैसे करते हैं, 1 का हम लोग 10% करते हैं. ओके, दैट इज 0.01. ओके, ये जो 0.01 है वो हम लोग ने किस पे कैलकुलेट किया, 1 के ऊपर ना. देन हम लोग क्या करते हैं, 0.01 प्लस दिस ओरिजिनल 1. ओके, सो 0.01 प्लस ओरिजिनल 1 दैट इज 1.1. ओके, 1.1. आफ्टर दैट 1 डिवाइडेड बाय दिस PV फैक्टर 1.1. ओके, ओरिजिनल 1 था डिवाइडेड बाय जो हम लोग ने फाइंड आउट किया 1.1. ओके, हम लोग को इज इक्वल टू प्रेस करना है अभी. सी 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू दिस मच. ओके, ये हो गया ईयर 1 का. वैसे ही हम लोग को 12 टाइम्स इज इक्वल टू करना है, मतलब हम लोग को जो वैल्यू है वो मिलेगा ईयर 12 का. ओके, सी दिस इज द value for year 1. okay, we have to go for year 12th. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ही इज इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे. ओके, लेट्स चेक अगेन. सी 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आ गया ईयर 1 का. वैसे ही 12 टाइम्स करना है, एक बार हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, सो ये हम लोग का आ गया 12th ईयर का, बिकॉज एट द एंड ऑफ 12th ईयर वी विल गिव द मशीन फॉर अ स्क्रैप. ओके, सो 0.32, 2 डेसिमल प्लेसेस तक बुक में राउंड ऑफ किया है तो हम लोग भी इधर उतना ही लेंगे. सो 0.32. ओके, सो दिस इज द फैक्टर पॉइंट ऑफ स्क्रैप. सो मल्टीप्लाइड बाय 0.32. ओके, ऐसे ये आया. So 3000 multiplied by 0.32, 960. So scrap value will be 960. अभी जो scrap होता है वो तो माइनस होता है ना, तो 19,000 माइनस 960 that is 18,040. आफ्टर दैट हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, सी परचेज प्राइस हो गया, स्क्रैप हो गया, देन एनुअल रिपेयर कॉस्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है. सी एनुअल रिपेयर कॉस्ट मतलब हर एक ईयर में 2000 ऐसे 12 ईयर्स तक कॉस्ट रहेगा. ओके, सो वी हैव टू इनकर एनुअल रिपेयर कॉस्ट दैट इज 2000 फॉर एवरी 12 ईयर्स. ओके, अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. ओके, अभी ये जो स्क्रैप का फाइंड आउट किया वो एट द एंड ऑफ 12th ईयर किया, लेकिन अभी जो एनुअल रिपेयर कॉस्ट है वो हम लोग को हर एक ईयर का फाइंड आउट करना है.
तो वो कैसे करना है वो अभी हम लोग देखेंगे. सी नाउ एनुअल रिपेयर cost. See, I am making this detailed working note for EXE. Will do the short working note for YWE because same things will be there in YWE. So for annual repair cost, see हम लोग ने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 1.1. ये 1.1 कैसे है मैंने आपको बताया हुआ है. ओके, सो हम लोग का आंसर कितना आएगा, इतना. ओके, ये हो गया ईयर 1 का. ओके, इधर हम लोग ने फाइंड आउट किया 12th ईयर का, बिकॉज 12th ईयर में हम लोग को स्क्रैप में डालना है, लेकिन इधर हम लोग को फाइंड आउट करना है फॉर 12 ईयर्स. ओके, सी 1 डिवाइडेड बाय 1.1. ओके, सो इज इक्वल टू किया तो दिस इज फॉर ईयर 1. आफ्टर दैट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th. ओके, and then 12. We require for 12. So this is the 12. See, यही हम लोग ने राउंड अप करके इधर लिया था स्क्रैप के लिए, बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द 12th ईयर था. लेकिन अभी हम लोग को टोटल चाहिए, ये जो भी 12 ईयर्स है उसका टोटल चाहिए. वी रिक्वायर टोटल ऑफ 12 ईयर्स पॉइंट दिस. ओके, सो विल टेक द टोटल. सी, फॉर टोटल वी हैव टू प्रेस डायरेक्टली GT, ग्रॉस टोटल. ओके, सो GT 6.81. we have to round up to 2 decimal places, that is 6.81. 6.81. okay, this is for all the 12 years, and this is for 12th year. See, this is the difference between both these points. So 2000 is the annual repair cost multiplied by 6.81. 2000 multiplied by 6.81. Answer is, that is amount is 13,620. So 13,620. ठीक है. Next is overhaul cost, that is at the year 8th. okay, so ये जो भी cost है overhauling का वो year 8th पे होने वाला है. okay, तो पूरे ईयर 8 का टोटल नहीं लेना है हम लोग को. जैसे स्क्रैप का हम लोग ने 12th ईयर का वैल्यू लिया, वैसे ही हम लोग को इधर 8th ईयर का वैल्यू लेना है. सो ईयर 8 पे जो भी हम लोग स्टॉप करेंगे तो जब भी जो भी वैल्यू रहेगा उससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है. सो ओवरऑल कॉस्ट हम लोग को दिया है 4000 मल्टीप्लाइड बाय उसका जो ईयर 8 का वैल्यू वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर ओवरऑल कॉस्ट, ओके, 1 divided by 1.1 is equal to 0.9090, that is for year 1, and we have to reach at year 8th. year 8th पे हम लोग को ओवरऑलिंग करना है ना, so year 8th का वैल्यू चाहिए. so we don't have to press the gross total because we want value of a year 8th. so 1 divided by 1.1. See, this is the value for year 1, then second, third, fourth, fifth, sixth, 7th, 8th. okay, so this is the value for year 8th, that is will round up to 0.47. 0.47. okay, we have to round up. so multiplied by 0.47. 4000 multiplied by 0.47, that is 1880. 18880. let's take total. see, this is the amount, that is 18,040 plus 13,620 plus 1880, that is 33,540. 33,540. see, this is the present value of a cash outflow. मतलब जो अभी जो कॉस्ट है 19,000, उसका जो भी प्रेजेंट वैल्यू है कैश आउटफ्लो, मतलब ये EXE मशीन का जो भी कैश आउटफ्लो होने वाला है 12 ईयर्स में, उसका प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को है 33,540. ओके, सो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये जो हम लोग ने 12 ईयर्स का वैल्यू फाइंड आउट किया उससे. ओके, तो 12 ईयर्स में हम लोग को डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मिलेगा. ये जो है वो टोटल 12 ईयर्स का है. हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एनुअली कितना आएगा
उसके हिसाब से भी हम लोग को कंपेयर करना है. सो वी हैव टू डिवाइड बाय 6.81. ओके, बिकॉज दिस इज द 12 years ग्रॉस टोटल ना. लेट्स चेक. सी, this is the total amount for 12 years. We are required equivalent annual cost, so we will divide this amount by PV factor of 12 years. 1 divided by 1.1 is equal to, this is for year 1, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. Okay, we'll take the gross total na, so that we'll get the value for all the 12 years. So gross total 6.81. see, 6.81. so we'll divide by 6.81. 33,540 divided by 6.81. so this is the 4,925. we'll round up 4,925. so this is the annual equivalent annual cost. Okay, we have completed for EXE machine. Like that we'll calculate for YWE machine. so this is the initial cost. After that we have to find out the scrap. See, scrap value is 3,000 and life of machine is 6 years. so 3,000 multiplied by, we have to find out for YWE machine na. so same thing will be there, because 10% is there for YWE. see, 10%. okay, so 1 multiplied by 10% will get 0.1. see, 1 multiplied by 10%, that is 0.1. so 0.1 plus 1. okay, so 1.1. now 1 divided by 1.1. 1 divided by 1.1, 0.9090. this is for year 1. this is for year 1. we required for 6th year, because scrap हम लोग करेंगे 6th year में. so 6th year का वैल्यू सेम जो लॉजिक है वो फर्स्ट मशीन का लॉजिक है, वैसे ही सेकेंड मशीन का लॉजिक रहेगा. ओनली 12 years के जगह पे इधर 6 years हो जाएगा. ओके, सो 6th year के लिए वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है. see, this is for year 1. so second, third, fourth, fifth and sixth. so value is 0.56. 0.56. so 0.56. 3,000 multiplied by 0.56, that is 1,680. तो स्क्रैप वैल्यू हम लोग माइनस करते हैं. सो 13,000 माइनस 1680, 1 that is 11,320. 11,320. now present value of annual cost, total cost. see, स्क्रैप का हो गया, इनिशियल कॉस्ट भी हो गया, एनुअल रिपेयर कॉस्ट दैट इज 2,600. ओके, एनुअल रिपेयर कॉस्ट 2,600. ओके, मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रिपेयर कॉस्ट हम लोग का पूरे 6 ईयर तक चलेगा. जैसे हम लोग ने इधर 12 years का फाइंड आउट किया, वैसे ही हम लोग को इधर 6th year का फाइंड आउट करना है. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 0.90. दिस इज फॉर year 1. ओके, नाउ वी रिक्वायर्ड फॉर ऑल द 6 years. ऑल द 6 years. सो ये year 1 का है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. ये हम लोग का 6th year तक का है. हम लोग को टोटल चाहिए क्योंकि एनुअल कॉस्ट हर एक ईयर में होता है. सो ग्रॉस टोटल 4.36, राउंड अप करेंगे 36, 4.36. ओके, सो 4.36 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2,600 मल्टीप्लाइड बाय 4.36, दैट इज 11,336. 11,336. आफ्टर दैट ओवरऑल कॉस्ट बोला है. ओवरऑल कॉस्ट का हम लोग को ईयर 4 है. ओके, सो एट द एंड ऑफ ईयर 4 वी हैव टू डू द ओवरऑलिंग. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू फॉर ईयर 4. इधर हम लोग ने 8th year का फाइंड आउट किया, वैसे ही ईयर 4 का फाइंड आउट करना है. सो ईयर 1 का हम लोग को पता है 9090 आएगा, वैसे ही हम लोग को 4th year का फाइंड आउट करना है. ओके, 4th year का. So 1 divided by 1.1, this is for year 1, then second, third, fourth. 0.68, 0.68.
ठीक है, 168 आ गया. सो हियर ओवरऑल कॉस्ट इज 2000 को मल्टीप्लाई करना है. सो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 0.68, 2000 multiplied by 0.68, it is 1360. So 11,320 plus 11,336 plus 1360, total is 24,016 divided by जो भी उसका वैल्यू, जो भी उसका लाइफ है, दैट इज 6 ईयर्स. 6 ईयर का जो भी ये फैक्टर रहेगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ईयर 1, दिस इज फॉर ईयर 1 ना. देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. हम लोग को टोटल चाहिए बिकॉज दिस इज द टोटल अमाउंट. सो वी रिक्वायर दिस फैक्टर्स टोटल, ग्रॉस टोटल. सो 4.36 सी, इधर जो हम लोग ने फाइंड आउट किया था वही. 24,016 डिवाइडेड बाई 4.36, सो 5,508. 5,508 इज द एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट. ओके, एनुअल इक्विवेलेंट कॉस्ट ऑफ YWE इज 5,508. सी, अभी हम लोग को चूज़ करना है कि हम लोग को कौन सा मशीन बेटर है, बेटर टू परचेज. ओके, सो एनुअल कॉस्ट मतलब एनुअल कॉस्ट किसका कम है, EXE मशीन का. ओके, EXE मशीन का एनुअल कॉस्ट कम है. सो बेटर कौन रहेगा, EXE मशीन. ओके, सो बेटर इज EXE मशीन. सो हियर we have completed illustration number 2. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.